Ariba, let me know when should we start. Ariba, can we start? Khabir, let's just wait for students for a while. Okay. ठीक है.
Okay, so for the people who are in the live session, Assalamu alaikum, and welcome to the first demo class for this Reconduct course that we are going to have for the next 30 days. So we'll start right at 9:10 p.m. because we have a few people joining in. Okay, so I think we should start. Uh, just 1 minute. ठीक है. So, Assalamu alaikum and welcome, all of you. This is going to be the first demo class which we thought कि हम लोग इसको broadcast करते हैं because a lot of people, especially from Sindh and Khyber Pakhtunkhwa, requested us कि Fahad bhai, there should be something for the students who are giving the reconduct. It's very unfortunate कि ये सारी situation वापस से हो गई. I remember my sister is 2 years elder than me. I'm in fourth year right now, and I remember back in her time, उसने जब MD दिया था, I guess it was 2017. उस वक्त भी प्रॉब्लम हुए थे एंड कंसेक्यूटिवली ये मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ कि कोई ऐसा एक साल नहीं हुआ है जिसके अंदर वी हैवंट हैड प्रॉब्लम्स. सो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट बट देन अगेन these problems, ये जो रोज रोज हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, these things make us resilient. ठीक है. And once you enter medical school, once you enter the profession of medicine, ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं. ठीक है. So you'll have to face these challenges, these problems on a daily basis. Just giving you people my introduction. I am Fahad. I'm a fourth year medical student at Dow University, Karachi, and I also happen to be the co-founder at PreMed.PK. The other co-founder with me is Hasnain. You might have seen him on our socials. He's a third-year medical student at Aga Khan University, and we both co-founded this amazing startup by the name of PreMed.PK, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम आप लोगों से मुखातिब हैं. So, starting with the common questions, without wasting any time, I'll just start with the common FAQs which we have had since we announced this crash course. कि फात भाई ये है क्या? So, इसके मैं पूरी डिटेल्स दे देता हूँ. I would take only 2 to 5 minutes of your time, and then फिर हम लोग
आज का जो हमारा होमवर्क था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या था। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध एंड KPK रिक्वेस्टेड अस के हमें कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करवा दें फाद भाई जिससे हम लोग बैक ऑन द ट्रैक आ जाएं, क्योंकि हमने जब MDCAT दे दिया था वी वर इन द चिल मोड, हम लोग पूरा चिल कर रहे थे एंड देन दिस हैपेंड। ठीक है, इट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थॉट कि रिकंडक्ट नहीं होगा, बट इवेंचुअली इट हैपेंड। एंड ऑब्वियसली उसके रीजंस अपने थे कि KPK के अंदर वो ब्लूटूथ वाला इशू हो गया था एंड सिंध के अंदर पेपर लीक का इशू हो गया था। तो अब सीन ये है कि अब ऑब्वियसली देना तो पड़ेगा MDCAT। तो इसमें मैं ऑनेस्टली ये एडवाइस दूंगा कि जिन लोगों का MDCAT अच्छा हुआ तो वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि रिकंडक्ट हो, लेकिन जिनका MDCAT अच्छा नहीं हुआ था, जिनको लगा था कि उनको अपना डिजायर्ड स्कोर नहीं मिला, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये कम बैक करने का टाइम है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कंफ्यूज था कि मैं इस कोर्स का नाम मिशन रिकंडक्ट रखूं या मिशन कम बैक रखूं। तो जो आपको अच्छा लगे, मैंने मिशन रिकंडक्ट रखा है। तो मिशन रिकंडक्ट का अगर मैं ओवरऑल डिटेल दे दूं, बिल्कुल इसको ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को रिदम में लाने के लिए वापस। ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने MDCAT तकरीबन 4 साल पहले दिया था एंड it has been 3 years since I've been running PreMed. And honestly speaking, the stark difference which I see between the students who perform really well on their MDCAT exam, who score 180, 190 plus, and the students who fail to perform on their MDCAT exam is the practice, the questions which they practice. तो हमारे पास स्टैट्स होते हैं स्टूडेंट्स के एंड वी कैन लिटरली सी कि कौन से स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा MCQs करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है ऑन ऑन देयर MDCAT एग्जाम। एंड वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, उन स्टूडेंट्स का स्कोर हमारे सामने होता है। So the key difference between a good student who scores really well on the MDCAT exam and the student who failed to score well on their MDCAT exam is practicing questions. Now, the entire idea behind our product, behind PreMed.PK, is that we offer you a platform जहाँ पे you can solve, you can attempt any kind of questions. सारे past papers available हैं, chapter wise MCQs available हैं, explanations available हैं, time test mode available है. So it's a platform जिसको आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। आपको मैं कहूँ कि PreMed बहुत अच्छा है, PreMed सबसे बेस्ट है, बट अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो प्रीमेड पे अपनी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें क्वेश्चंस की, पहले चैप्टर वाइज से स्टार्ट करें एंड देन यू गो ऑन टू ईयरली MCQs। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक विशियस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं कि नहीं, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आई रिमेंबर मैंने अपने MDCAT दिया था, आई गॉट रियली गुड मार्क्स। मुझे याद है मैं एक साइकिल के अंदर फंस चुका था 1 महीना पहले अपने MDCAT से, और वो साइकिल थी कि मैं अपना सिलेबस ख़त्म करने के पीछे पड़ा हुआ था। सो माई सिस्टर टोल्ड मी कि फाद दिस इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, माई सिस्टर is an AKU grad. She also got 18th position in her Sindh MDCAT exam, and she told me, Fahad, this is not the way you're going to get into DAO. ठीक है, so you need to practice as many questions as possible. तो फिर मैंने उस आखिरी के 1 महीने के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस किए थे। मैंने किताबें बंद कर दी, मैंने अपना 70% सिलेबस कवर किया हुआ था। मेरी सिस्टर ने कहा मुझे कि दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई एम गोना गिव इट टू यू, कि अपना सिलेबस अब बंद कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। फिर जो सिलेबस का पार्ट तुम्हारा रहता है उसको तुम एक्टिवली कवर कर लेना, जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती है क्वेश्चंस के अंदर फिर उसको तुम कवर कर लेना। इस तरीके से मैंने अपना 100% सिलेबस भी कवर कर लिया, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, और मेरी मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने फिर आखिरी के दिनों में सिर्फ ईयरली फुल लेंथ पास पेपर्स किए थे। Now the entire reason why I'm telling people this story is कि I just want to emphasize कि why practicing questions is very very important। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि इसके ऊपर पैराग्राफ लिख दो या इस कॉन्सेप्ट को वर्बली समझा दो। ठीक है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट एट द एंड ऑफ द डे पेपर के अंदर MCQs होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने। ठीक है, प्रीमेड हैज़ नाउ वेल ओवर 50,000। दूसरा, व्हाट इज़ दिस कोर्स? तो मैं बिफोर हैंड सब स्टूडेंट्स को बता देता हूँ पहले से ही कि इस पूरे कोर्स के अंदर कोई
हम लोग डिटेल के अंदर चैप्टर्स नहीं पढ़ाएंगे. सो इफ़ यू आर कमिंग इन विद दिस होप के हमें शायद प्रीमेड के कोहॉर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे या तैयारी या चैप्टर इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी या टेक्स्ट बुक खोल के हमें टीचर जो है वो किताबों की लाइन याद करवाएंगे, तो नहीं, दिस कोर्स इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज़ दिस कोर्स? आपको एक होमवर्क दिया जाएगा. अगर मैं बिल्कुल ब्रीफली अगर मैं इस कोर्स को एक्सप्लेन करूं तो आपको सुबह शाम एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और डंडे के जोर पे करवाए जाएंगे. ठीक है, मैंने क्या कहा, उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स है जिनको लग रहा है कि वो उनका रिदम नहीं बन रहा है इस चीज़ का. तो जब आप इस कोर्स के अंदर इनरोल होंगे तो आपको सुबह और शाम एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और वो एमसीक्यूज 500 सब्जेक्ट्स के होंगे. बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट्स पे आता हूँ बाद में कि इन पे फोकस नहीं करते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर उनका MDCAT के अंदर स्कोर खराब आता है, इवन दो दे परफॉर्म रियली वेल ऑन द अदर 3 सब्जेक्ट्स, बट एक मार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. सो सुबह शाम आपको MCQs करवाएंगे और फिर उन MCQs की रात को होगी डिस्कशन विद द टीचर. ठीक है, आपके आपके साथ 3 टॉप मेरिट मेंटर्स होंगे जो कि आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रख रहे होंगे. आपसे पूछेंगे कि आपने होमवर्क किया नहीं किया, उसके बाद आपसे पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम हुई. अगर आपको उन क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो क्वेश्चंस आपको 1-to-1 बेसिस पे समझाए जाएंगे. ठीक है, 3 मेंटर्स होंगे एक कोर्स के लिए और हम लोग ने इस पूरे कोर्स के अंदर लिमिटेड स्पॉट्स इसी वजह से रखी है कि हम चाहते हैं कि 1-to-1 अटेंशन हो. ठीक है, तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन को आप समझ नहीं सकते अच्छे तरीके से, तो आप हमारे मेंटर के पास आएंगे क्लास के बाद, क्लास से पहले, और उनको कहेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. वो मेंटर आपको इंडिविजुअली ग्रुप पे भी समझाएंगे, पर्सनल चैट पे भी समझाएंगे. तो एक तो ये हो गया. 7 डेज अ वीक क्लास होंगी, तो 1 महीना रहता है तकरीबन MDCAT के अंदर वापस रिकंडक्ट होने के अंदर, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है. तो अगर मैं ये कहूँ कि संडे वाले दिन छुट्टी होनी है, नहीं, कोई छुट्टी नहीं है. ठीक है, 30 दिन है, 30 दिन के बाद MDCAT दे दो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, अयाशी है. लेकिन ये 30 दिन नो ब्रेक के साथ काम करना है. हु विल बी टीचिंग? एक FAQ आया कि भाई पढ़ा कौन रहा है. तो एट PreMed.PK वी बिलीव के टीचर्स की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए. एंड बी इट आवर AQ कोर्स, आवर MDCAT कोर्स, टेस्टिमोनियल्स यू माइट हैव सीन ऑन आवर सोशल मीडिया, कोर्स के बारे में कोई बुराई नहीं करता है, सब कहते हैं कि यार वाकई में वर्थ इट था. ठीक है, और ये वाला कोर्स जो होगा ना, ये सबसे वर्थ इट होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करवाए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस और हर किस्म के. तो आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ लेक्चर्स के लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं, नहीं, आपको ये क्लास इस कोहॉर्ट के अंदर स्पेशली उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करवाया जाएगा. वो क्वेश्चंस फिल्टर आउट हम लोग आपको करके देंगे जो कि हमें लगता है, हमारे टॉप मेरिट मेंटर्स को लगता है कि यार ये क्वेश्चंस हाईली प्रोबेबल हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट? मैंने वो यही कहा है कि इस कोर्स से आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि हम लोग बैठ के एक एक बुक की लाइन पढ़ा रहे हैं या चैप्टर्स रिवाइज करवा रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस होगी. आपका हमारा काम ये नहीं है इस कोहॉर्ट के अंदर कि आपको कॉन्सेप्ट्स दें. हमारा काम है आपका MDCAT का स्कोर रेज करना, आपका MDCAT का स्कोर 180-190 लाना. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वापस से मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस कोर्स के अंदर कि हम कोई बैठ के इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे या इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे होंगे या बुक खोल के एक एक लाइन पढ़ा रहे होंगे. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. मैं क्लियर कट बता रहा हूँ. काफ़ी सारे बच्चे इस एक्सपेक्टेशन के साथ फीस भी पे कर देंगे कि हमें पढ़ाया जाएगा ये सारी चीज़ें. नहीं, किताब आप खुद भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब आपके पास है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो. हमारा काम है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर कोई इशू आता है तो हमारा मेंटर उस चीज़ को सॉल्व करेगा. आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि इसका स्केड्यूल क्या होगा. मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नया ज्वाइन किया है. 30 दिन क्लासेस होंगी. ठीक है, जितने दिन भी MDCAT हो जाता है आज से लेके तकरीबन जब भी MDCAT होता है तब तक हमारी क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू करेंगी. नो ब्रेक्स, संडे को भी कोई ब्रेक नहीं है. सुबह आपको होमवर्क दिया जाएगा, शाम को आपको होमवर्क दिया जाएगा और उन MCQs की होगी डिस्कशन रात को. और जो MCQ समझ नहीं आता है उसके लिए आपके पास 24/7 मेंटर अवेलेबल होगा. ठीक है, इसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि इस कोहॉर्ट के अंदर बहुत लिमिटेड लोग ही हम लोग रखेंगे
एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आई हैं, हम लोग उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली पीपल जो कि सेलेक्ट होंगे इसके लिए. ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 स्लॉट्स हैं एंड वी हैव हैड ओवर 300 एप्लीकेंट्स. तो 1 out of 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, बाकी वेट करें अगर कोई और कोर्स लॉन्च होता है. वैसे मुश्किल है कि और कोई कोर्स लॉन्च हो, बट अगर होता है तो फिर उसमें आपको अकोमोडेट किया जाएगा. सो ओनली 1 स्टूडेंट out of 3 विल बी सिलेक्टेड. तो 100 सीट्स हैं हमारे पास एंड उसके बाद वी विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी मोर कैंडिडेट्स. डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोहॉर्ट. तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, योर फीस विल बी रिफंडेड एंड यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द कोहॉर्ट, क्योंकि हमें नॉन सीरियस बच्चे नहीं चाहिए. प्रीमेड की रेपुटेशन उन बच्चों पे डिपेंड करती है जो कि प्रीमेड के कोर्स में इनरोल होते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो हम आपको पाथवे बता सकते हैं, आपको रोड दे सकते हैं, उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, तो जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे मेंटर्स कोशिश करेंगे कि आपसे अकाउंटेबिलिटी लें. लेकिन अगर आप हमारे मेंटर को झूठ बोलते हैं कि नहीं मैंने तो होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके MDCAT के अंदर मार्क्स नहीं आते, तो यू नो फॉर अ फैक्ट, यू नो दिस, कि आपने मेंटर को भी चीट किया था और अपने आप को भी चीट किया था. तो दो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि झूठ नहीं बोलना है. अगर आपने एक क्लास मिस कर दिया या एक होमवर्क लेसन मिस कर दिया है, तो मेक श्योर कि अगले दिन आप उस होमवर्क को कंप्लीट करें और फिर उस दिन वाले होमवर्क को भी कंप्लीट करें. तो अगर एक दिन का मिस हो गया है या 2 दिन का मिस हो गया है काम, तो मेक श्योर कि तीसरे दिन आप उन सारा पिछला होमवर्क जो है वो आप कंप्लीट करो. मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपरली इस कोर्स का काम, इस कोर्स का होमवर्क और फिर रात को डिस्कशन अटेंड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे अपने हमारे मेंटर से, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चांस है कि आपके MDCAT के अंदर कम मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि हमारे स्टूडेंट्स MDCAT में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करें. आज जो कि हमारे MDCAT ग्रुप्स में एडिड थे, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल इन किया हुआ था, सो दे वर आल्सो एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप. उस व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे इंस्टाग्राम के सोशल्स पे भी आपने देखा होगा कि हम लोग ने आज फ्री डेमो टेस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है. वो 50 क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि आपको अटेम्प्ट करना था, और फिर उसके बाद रात को आपको मिस तहरीम की, मिस हफ्सा की और मिस मारिया की डिस्कशन रात को अटेंड करनी है. उनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया था वो इस डिस्कशन के अंदर आपको समझाया जाएगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ द क्लास. ये आज आखिरी फ्री लास्ट होमवर्क था. इसके बाद उन स्टूडेंट्स को ही होमवर्क मिलेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए ही वो एक्सेसिबल होंगे वो क्वेश्चंस जिन्होंने कोहॉर्ट के अंदर इनरोल किया हुआ है. ठीक है, बाकी आपका अगर आपको कोहॉर्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको लगता है कि नहीं डिस्कशंस आर नॉट यूजफुल फॉर मी, होमवर्क्स आर नॉट यूजफुल फॉर मी, तो आपके पास प्रीमेड का तो एक्सेस है. ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, मॉक्स का, सो यू कैन प्रैक्टिस दोस. बट ये कोहॉर्ट का सिर्फ और सिर्फ आखिरी मैं चीज़ कहूँगा कि इसका जो अगर मैं क्रक्स कहूँ कि क्या है, तो इसका सिर्फ क्रक्स यही है कि आपको बैक टू रिदम लाना है. इन 30 दिनों के अंदर आपको बिल्कुल ऑन द ट्रैक लाना है और आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना है. दैट्स आवर टास्क एंड उसको फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो नाउ ओवर टू तहरीन. शी विल बी डिस्कसिंग दोज 50 क्वेश्चंस जिनका होमवर्क आपको मिला था. एंड देन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब का जो लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आप लोग मेंशन कर दें अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. मिस तहरीन विल बी अवेलेबल आफ्टर द क्लास और वो आपको उस क्वेश्चन पे वापस जाके वो क्वेश्चन समझा देंगी. सो दैट्स अबाउट इट. एंड it's totally going to be first come first serve basis. जैसे कि मैंने कहा 300 applicants हैं and we can only accommodate 100 people, not more than that. So book your seats as soon as possible because जैसे ही वो 100 से ऊपर मार्क क्रॉस होगा, ना हम लोग फीस एक्सेप्ट करेंगे, ना हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे. भले आप मेरे दोस्त हो, भले आप मेरे छोटे भाई हो, फैमिली मेम्बर हो, नो, we are not going to entertain this because quality compromise होगी and we do not want that. So over to you, Terry, and you can start now.
Okay, so assalamu alaikum everybody. It's Tahreem here. You guys know my MDCAT score is 182, and today we will be discussing the chapters जिसका आप लोगों को सुबह homework group में send किया था. Before I will discuss the questions, we are gonna go through a little summary of the chapter. उसके बाद we'll come to the discussion of the questions. ठीक है? So starting with biology, the chapter is gaseous exchange. ठीक है? So in this chapter, first start with the word gaseous exchange. ठीक है? So it's respiration. आप gases को exchange करें. This means you have to take in the oxygen from the environment and आपकी body से carbon dioxide to the environment. ठीक है? So this is exchange happening. ठीक है? इसमें आपके पास दो type की respirations होती हैं. One is internal respiration and the other is external respiration. इंटरनल रेस्पायरेशन इज़ एक्चुअली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस. उसमें आपके पास ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं एंड आपको एनर्जी मिल रही होती है. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड्स. और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है दैट इज़ जस्ट वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वही ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेसिफिक दैट एवरी रेस्पायरेटरी सरफेस शुड हैव. ठीक है, फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग. ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है परमिएबिलिटी. अब एक सर्विस परमिएबल है, इसका मतलब कि वो एक्सचेंज अलाउ करेगी. ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की एक्सचेंज अलाउ करेगी, तभी तो वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस है. ठीक है, दूसरी चीज़ है कि वो थिन होनी चाहिए. ठीक है, थिन इससे ये होगा कि एफिशिएंटली जो गैसेस होंगी ना उनका एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा. देन देयर इज़ लार्ज सरफेस एरिया. तो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होंगी, जिसकी वजह से आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. देन देयर इज़ ब्लड सप्लाई. सो इन ह्यूमन बींग्स व्हेन वी टॉक अबाउट इट, सो आपके पास आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितना भी बॉडी है, उससे सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कलेक्ट करता है. ठीक है, एंड द एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स. ठीक है, सो लंग्स में आपके पास ऑक्सीजन आ रही है फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ब्लड में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है दैट जो उसने पूरी बॉडी से कलेक्ट कर लिया. ठीक है, नाउ द एक्सचेंज इज गोइंग टू हैपन. सो यू नीड द ब्लड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस, अराउंड द रेस्पिरेटरी सरफेस, जहाँ से आपके पास एक्सचेंज पॉसिबल हो सके. एंड देन इट इज़ द वेंटिलेशन मैकेनिज्म. सो आपके पास एक जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, इट शुड हैव अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू हैव अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपके पास आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सही, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आपके पास आ जाता है नोज़ एंड फेरिंग्स. ठीक है, नोज़ आपके पास ओनली, इट इज़ द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको नहीं दिख सकता एक्सटर्नली, बट नोज़ इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज़ एक्सटर्नली विजिबल. ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि नोज़ में आपके पास इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन, यानी इसके अंदर ये एक्चुअली इट आल्सो वर्क्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर योर बॉडी. इसके अंदर सीलिया है, हेयर है, म्यूकस है. ठीक है, सो ये डर्ट को, डस्ट को, डस्ट पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को फिल्टर कर लेते हैं ताकि आपके पास क्लीन एयर जाए आपकी बॉडी के अंदर. एडिशनली यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, एयर होती है ना, जो आपके पास एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, सो आप जो इन्वायरमेंट है वहाँ से एयर अपनी नोज़ के थ्रू अंदर करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ योर फेरिंग्स. तो फेरिंग्स इज़ एक्चुअली अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ योर फूड एंड एयर. ठीक है, यानी यहाँ से फूड भी आपका गुजरेगा, एयर भी गुजरेगी. आगे जाके इनका पाथ दोनों का डाइवर्ज हो जाता है, दोनों के अलग अलग आ जाते हैं. जिस तरह हम कहें कि अगर फूड है सो इट गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस. ठीक है, एंड जो एयर है वो आपके पास फेरिंग्स से जाएगी टू द लेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स आपके पास एक कॉमन पैसेज है फॉर द, इट इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, सो अच्छा, इसमें आपके पास इसके तीन सेक्शंस होते हैं. यू हैव ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अब आपके पास नोज से आपने एयर अंदर की, देन कम्स द फेरिंग्स. ठीक है, एंड फेरिंग्स के बाद आपके पास एयर आ गई लेरिंग्स में. लेरिंग्स इज़ एक्चुअली आपके पास एक ऑर्गन है, इसकी ओपनिंग को आप ग्लॉटिस कहते हैं. ठीक है, एंड ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस. वो कवर कर रहा होता है ग्लॉटिस को. ठीक है, इसमें ये होता है कि व्हेन यू ईट तो आपका खाना ग्लॉटिस का फंक्शन ये होता है कि जो आपका खाना है वो आपका ईसोफेगस में जाए, नॉट टू द लेरिंग्स. ठीक है, ताकि एयर लेरिंग्स में जाए, मतलब उसको डाइवर्ट कर रहा होता है खाने को टूवर्ड्स द ईसोफेगस. ठीक है, देन कम्स ट्रीकिया.
तो ट्रेकिया आपके पास आफ्टर लेरिंग्स कम्स द ट्रेकिया, इसको आप विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ आपके पास होती है अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर भी इसका 2 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो इसको अपराइट पोजीशन में रख रहा होता है, ठीक है, और इसको कोलैप्स नहीं होने दे रहा होता व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। एंड इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। वन थिंग आई मिस्ड इन ट्रेकिया इज ट्रेकिया में आपके पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी इसी वजह से कहते हैं, इसी फंक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स हम इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स यू नो they help in the production of they help in voice production, ठीक है। next coming to bronchi, so एक सेकेंड, नेक्स्ट कमिंग टू ब्रोंकाई, सो आपके पास ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है टू फॉर्म द ब्रोंकाई। वी डू हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया से आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई ओरिजिनेट होते हैं, अब प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से आगे आपके पास टर्शरी ब्रोंकाई ओरिजिनेट होंगे। आपके पास जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट लंग्स में, वो दो होते हैं, ठीक है। एंड दे डू हैव कार्टिलेज, सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है उनके अंदर। व्हेन टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो ये डिवीजन होती है इनसाइड द लंग, लंग के अंदर जाके जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं दे डिवाइड टू फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर सेकेंडरी ब्रोंकाई का 5 होता है, ठीक है। लंग में आपके पास जो लेफ्ट लंग होता है उसमें आपके पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं एंड राइट लंग में आपके पास 3 होते हैं। ये क्यों होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट लंग्स, तो हम कहते हैं जो आपकी लेफ्ट लंग है इट हैज़ 2 लोब्स, वेयर एज राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। सो इस वजह से आप इसी तरह याद रखें कि 2 लोब्स आपके पास होती हैं ऑफ द लेफ्ट लंग, इसी तरह आपके पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग, ठीक है, और 3 लोब्स आपके पास होती हैं राइट लंग की, और इसी तरह आपके पास 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन द राइट लंग, ठीक है। Then coming to the tertiary bronchi, so they are present inside the lungs. They do not have any cartilage, इनके अंदर कोई सीलिया नहीं होता, but they have mucus, ठीक है, and इसका जो diameter होता है that is less than 1 millimeter. उसके बाद जो bronchioles होते हैं they further divide ultimately they give rise to the alveolar ducts, और जहाँ से आपके पास आगे form हो जाते हैं alveoli, ठीक है। When we talk about alveoli, so alveoli is actually the place where gaseous exchange is occurring, ठीक है। हम होता है इलास्टिन से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सिंस एयर ने इसके अंदर जाना है, ठीक है, सो इसको रप्चर नहीं करना एयर के अंदर जाने से, इट शुड हैव द कैपेसिटी by the alveoli, they are surrounded by capillaries, आपके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि एफिशिएंटली गैशियस एक्सचेंज हो सके। सो उसके बाद लोब्स वाली बात हमने कर ली। लेफ्ट साइड पे आपके पास हार्ट की 2 लोब्स होती हैं, राइट साइड पे 3 लोब्स होती हैं। Ariba, if you can hear me, I think Tareem की आवाज़ थोड़ी सी कट हो रही है. Can other participants confirm this as well? Yeah, is it only happening for me? It's happening for me as well. Okay, okay. Invited, I ठीक है, सो think दिस इज थोड़ी सी आवाज़ तरीम आपकी थोड़ी सी आवाज़ मेरे ख्याल से माइक आपका थोड़ा सा दूर है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है. okay, let me try to fix that. Is it better now? Yes, Harim, it's better, लेकिन बीच में एकदम कट हो रही है. Okay, let me check my connection then. Okay, I hope this will work. Acha, am I audible now? Yeah. Okay.
अच्छा, आई थिंक वो कनेक्शन थोड़ा सा ऑडियो का लूज है, इस वजह से व्हेनेवर तरीम इज स्पीकिंग तो वो शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है इस वजह से. वापस that is 500 milliliter. ठीक है. Then comes the residual volume. So that the residual volume आपके पास वो volume है that is always in your lungs present. ठीक है. Even if you expire, that is in the lungs, ताकि lungs collapse ना करें. That is 1.5 liters. ठीक है. Then comes the maximum capacity of the lungs. So it is 5 to 6 liters. That is the maximum capacity your lungs can hold. And when you deep breathe, ठीक है, जब आप deep breath करते हो तो आपके lung में your lung contains 3 liters at that time, 3 liters of air at that time. Okay, so these are the lung volumes. Then coming to the mechanism of breathing, so breathing has two phases. Okay, one is inspiration and the next is expiration. Inspiration is inhalation simply, okay, and expiration is exhalation. इसमें आप inspiration में you're getting the oxygen from the environment, ठीक है, and in expiration you're giving the carbon dioxide to the environment, ठीक है. Inspiration is an active process, expiration is passive process, ठीक है. Inspiration में आपके पास diaphragm contract हो जाता है, ठीक है, diaphragm moves down by contracting और वो flat हो जाता है. वैसे ही diaphragm आपका dome shaped होता है when you expire, so वो आपके पास diaphragm relax होगा and more dome shape हो जाएगा. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो डायफ्राम का बिहेवियर है ना, वही आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी बिहेवियर है. जब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, ठीक है. और इंटरनल का उनका उससे ऑपोजिट बिहेवियर है, तो आपको इस तरह आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है. सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं दे डू कॉन्ट्रैक्ट, और जो इंटरनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. जो आपका रिप केज है दैट मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, यू कैन फील इट व्हेन यू breathe, you can feel it, ठीक है. So your rib cage moves outward and forward. आपके पास chest cavity का size increase हो जाता है, pressure decrease हो जाता है. हम कहते हैं pressure decrease हो रहा है, area increase हो रहा है, जिसकी वजह से जो external air है due to the pressure difference वो आपके पास lungs के अंदर आ जाती है, external air, ठीक है. Moves inside the lungs, oxygen आपको मिल रहा है, ठीक है. When we talk about expiration, so it's the exact opposite of that, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो diaphragm है वो relax हो रहा है back to the dome shape. Then comes the external intercostal muscles, they are going to relax as well. जो internal intercostal muscles हैं वो आपके पास contract कर जाते हैं, ठीक है. And जो rib cage है that moves downward and inward, और chest cavity का size decrease हो जाता है, यानी area decrease हो रहा है तो pressure increase हो रहा है. मतलब ये हमने physics में भी relation पढ़ा हुआ है ना, हम कहते हैं P is equals to force divided by area, ठीक है. सो प्रेशर और एरिया का आपके पास इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है. सो मैं ये कह रही हूँ एरिया आपके पास जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. सो आपके पास साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रहा है, यानी एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उसके अंदर, इंक्रीज कर जाएगा, और आपके पास एयर है वो कहाँ चली जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम गैसेस की ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें. सो आपके पास व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, सो वी कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी इन टू वेज, ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है. आपके पास जो मेजॉरिटी ऑक्सीजन है वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देन कम्स द remaining 3%, so it is dissolved in the plasma, ठीक है. So that is the remaining 3%. When we talk about carbon dioxide, तो आपके पास maximum carbon dioxide transport होती है in the form of bicarbonate ions, and that is the 70% of carbon dioxide. And in the form of carboxyhemoglobin, it's only 23%, and dissolved in plasma, is 7%. ठीक है. When we talk about the exchange or transport of carbon dioxide as bicarbonate ions, तो इसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दैट diffuses into the blood and that enters the red blood cells, और वहाँ पे वो water के साथ combine हो जाती है. So we are, wait a second, we are gonna write it like this. यहाँ पे if you do react, we are talking about carbon dioxide plus water. So this reaction occurs in the presence of carbonic anhydrase, ठीक है. और आपके पास end पे क्या बन जाता है, you get carbonic acid, it is H2CO3, ठीक है. बट ये आपके पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये फौरन डिसइंटीग्रेट हो जाता है टू फॉर्म द हाइड्रोजन आइंस, प्लस यू गेट बाइकार्बोनेट आइंस दैट इज HCO3 माइनस, ठीक है. तो ये आपके पास बन जाता है. बट दिस हाइड्रोजन आइन, दिस इज एसिडिक, ठीक है. दिस कैन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द ब्लड, जो कि हम नहीं चाह रहे, ठीक है. द
pH of the blood is 7.35 to 7.45, ठीक है, and in our body we do have a buffer mechanism ताकि हम उसको normal पे ही maintain कर सकें, ठीक है. So the accumulation of hydrogen ions that can ultimately lead to increase of the acidity in the blood, ठीक है, जो हम नहीं चाह रहे, pH decrease हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इज़ हीमोग्लोबिन होता है वो आपके पास इस हाइड्रोजन को बफर कर लेता है. जो आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है, उसका रिएक्शन होता है इस हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है, दिस हाइड्रोजन आयन, एंड उससे आपके पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है. सो इस वे में आपके पास यू थ्रू अ बफर मैकेनिज्म यू मेंटेन द एसिडिटी. फिर आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर यू डू हैव दिस आयन, ठीक है, दैट इज़ द बाइकार्बोनेट आयन. अब ये क्या करेगा, ये डिफ्यूज़ कर जाएगा इन द प्लाज्मा, ठीक है, एंड इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. दिस इज़ ऑल जस्ट टू मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन, ताकि आप ब्लड का पीएच मेंटेन कर सको, ठीक है. सो इसको आप कहते हो क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना इसको कहा जाता है, ठीक है. एंड पे जो आपके पास पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बना देगा और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस. सो इस तरह यू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड ओवरऑल, ठीक है. Next is the respiratory pigments. So we do have two respiratory pigments that we will be studying. ठीक है, पहला आपके पास आ गया it's hemoglobin and next is the myoglobin. So hemoglobin is actually oxygen carrier. इसका काम क्या है, from one part of the body to another part of the body with the help of blood you do carry the oxygen, ठीक है. So this is the function of hemoglobin. ये आपके पास red blood cells के अंदर present होते हैं, ठीक है. red blood हम जब कहते हैं ना कि किसी को खून की कमी है तो हम कहते हैं दैट पर्सन हैज़ एनीमिया, ठीक है. सो दैट पर्सन मे हैव द सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है. सो ये किस वजह से होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम है. जब रेड ब्लड सेल्स कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई ना ब्लड की, सिंस यू डोंट हैव द कैरियर्स, ठीक है. कैरियर्स का नंबर कम होगा तो आपके पास डेफिनेटली प्रोडक्ट है वो भी कम हो रहा है. यू आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट ऑक्सीजन यू नीड इन योर बॉडी, ठीक है. इस वजह से आफ्टर स्ट्रेंचियस एक्सरसाइज आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लो, यू डू सफ़र शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है. सो हीमोग्लोबिन इज़ एक्चुअली कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ये आपके पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. दिस मीन्स 4 ऑक्सीजन एटम कैन कंबाइन एट अ टाइम विद 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है. सो इस तरह करके हीमोग्लोबिन डू transport या carry the oxygen from one part of the body to another through blood, ठीक है. And when it comes to myoglobin, so इसका function होता है store करना oxygen. It is mostly present in the muscles, ठीक है. मसल्स और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है. इसका मतलब इट कैन ओनली ट्रांसपोर्ट 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, ठीक है. तो एक मायोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और इस तरह इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है. एंड अगर हम बात करें एफिनिटी की तो मायोग्लोबिन की ज़्यादा एफिनिटी होती है टू ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन ने ना जब मतलब हीमोग्लोबिन हैज़ टू लीव ऑक्सीजन एट अ पॉइंट. उसका काम ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखे या उसको स्टोर करे, ठीक है. सिंस इट इज़ जस्ट अ कैरियर, तो आपके पास जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, इट विल लीव द ऑक्सीजन, ठीक है. बट इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, अनलेस एंड अनटिल योर बॉडी इज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी यू डू हैव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब तक इसने ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करना. इसका मतलब इसकी एफिनिटी ज़्यादा है विद ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन. So next is okay. So I guess this is it with biology, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू केमिस्ट्री. एंड केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद दिस, इसमें हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर मैं आपको एक सेकेंड, लेट मी डिवाइड इट इक्वली. व्हेन वी टॉक अबाउट एन एटम, वी से आपके पास ये एक एटम है, ठीक है. एंड इसके बीच में ये न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं दैट आर न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज, ठीक है. एंड बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट आर नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम, ठीक है, इन देयर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है. तो जब हम इसकी बात करते हैं, सो वी से अगर मैं आप लोगों को इसकी डिस्कवरी वगैरह बता दूं तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने. नेम इलेक्ट्रॉन दिया था स्टोनी ने, ठीक है. प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड नेम्ड प्रोटॉन, ठीक है. न्यूट्रॉन को जे चैडविक ने ही डिस्कवर किया था, उन्हीं ने ही नेम दिया था न्यूट्रॉन को नाम, ठीक है. एंड
फिर अगर हम पॉजिटिव रेज की बात करें, सो हाउ वर द पॉजिटिव रेज, आप उन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। हाउ वर दे डिस्कवर्ड, ठीक है, सो इट वाज एक्चुअली अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद अ प्रेशर ऑफ 0.01 टॉर। इसमें वोल्टेज आपके पास इट वाज 5000 to 10,000 वोल्ट, ठीक है, एंड द पॉजिटिव रेज दे वर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड रे, यानी आपके पास एक गैशियस एटम था, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बम्बार्ड हुआ, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव, let me write the equation. We write it as this is m, this is a gaseous atom, ठीक है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट m पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक इलेक्ट्रॉन जो आपने बम्बार्ड करवाया था और एक इस न्यूट्रल गैशियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, सो यू विल गेट अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है। सो यहाँ आपके पास एक कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है एंड यू आर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आप इसको कैनाल रेज भी कहा जाता है बिकॉज दे इमर्ज फ्रॉम द परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, एंड इसको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द चार्ज दे कैरी, ठीक है, दे डू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो दे कास्ट अ डीप शेडो, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन ZNS, ठीक है, इसकी रेड फ्लोरेसेंस होती है, दे डू शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्लेक्शन, सिंस द रेज आर चार्ज्ड, सो दे आर गोइंग टू शो डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द since they are positive, so unlike charges attract each other, they are going to deflect towards the negatively charged electrode, ठीक है। So next is we are going to discuss about the Planck's quantum theory. It was given by Max Planck in 1900, and अगर इससे पहले मैं आपको दो तीन टर्म्स का बता दूं, इट विल बी बेटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की एंड वेव नंबर की, ठीक है, मैं शॉर्टली इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, you represent frequency with this, ठीक है, and हम कहते हैं number of waves per unit time. So you can say here आप कह दो cycles per second, revolution per second, ठीक है, revolution per minute कह दो, या hertz इसका unit होता है, ठीक है। So this is frequency. अगर हम wavelength की बात करते हैं, so we talk about the distance between two consecutive crust and trough, ठीक है, like this। अगर मैं इसकी इस तरह आप लोगों को समझा दूँ, तो two consecutive crust and trough के दरमियान का जो distance होता है, that is your wavelength। इसको आप lambda से represent करते हो, this lambda, ठीक है, and इसमें आपके पास unit आ जाते हैं, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, मीटर ले लें। And when we talk about wave number, so it is a number of waves that pass through that are passing per unit length, ठीक है। So आप इसको इस तरह वेव नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसका यूनिट आपके पास होता है मीट पर मीटर या पर सेंटीमीटर, लाइक दिस, ठीक है। These were the terms you should know before we come to the postulates of Plankton, ठीक है, प्लैंक्स। सो इट इज़ पहला पोस्टुलेट हम आ जाते हैं कि एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। अब आपके पास एनर्जी आप इमिट हो रही है, अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में ना, मतलब बोहर का इशू कहाँ से आ रहा था, साइंटिस्ट यूज टू बिलीव दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूसली इमिट्स एनर्जी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को लेके चलें, सो वी कैन से दैट कि अगर वो कंटिन्यूसली इमिट करेगा एनर्जी, सो अ पॉइंट विल कम, इट विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, सिंस द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इट, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स डू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड द एटम विल ख़त्म हो जाएगा एटम, वट इज़ द पॉइंट ऑफ एनीथिंग देन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, नाउ वी नो कि इलेक्ट्रॉन में आपके पास मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो चीज़ कब होती है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर, ठीक है। हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो इमिट करेगा एनर्जी, लोअर शेल से हायर में जाएगा तो वो रिली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इट नीड्स एनर्जी इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम अ लोअर शेल टू अ हायर शेल, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग प्लांक टोल्ड, ठीक है। एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटम इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हम इसको कहते हैं जो एनर्जी है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, we say that E is directly proportional to frequency, so E is equals to hv, ठीक है, and this h is the Planck's constant, इसकी वैल्यू होती है 6.625 into 10 raised to the power minus 34 joules, ठीक है, and energy is emitted or absorbed in simple integral multiples of quantum, ठीक है, यानी आपके पास एनर्जी इमिट हो रही है या रिलीज हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है, इन अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। जिस तरह अगर मैं आपको इसकी एक थोड़ी stupid सी एग्जांपल है, इफ़ यू गो बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, ठीक है,
like if you're gonna buy biscuits or something, you're gonna say give me 1 pack of biscuit. ठीक है, so you are not going to say, आप शॉपकीपर से ऐसे नहीं कह सकते give me a half biscuit and keep the half with yourself. ठीक है, so ऐसा नहीं होता. सेम इज़ द केस, आप जब एनर्जी इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, इट इज़ गोइंग टू बी इन द सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम. ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपके पास क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं. सो आपके पास, आपने पूरे इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करना हो ना, अगर उसकी सब चीज़ों को आप पूरे इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करो, यू नीड फोर्स क्वांटम नंबर्स. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. अगर हम इनकी बात करें तो जो प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक है और एजीमुथल है, दे वर गिवन बाय स्क्रोडिंगर. ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उससे स्क्रोडिंगर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर, सो इट वाजंट गिवन बाय स्क्रोडिंगर, it was actually discovered in 1925 by Goldstein. ठीक है, Goldsmith, it was Goldsmith. ठीक है, सो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, सो इट टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ एन ऑर्बिट. ठीक है, एक ऑर्बिट का साइज क्या है, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. एक ऑर्बिटल की शेप क्या है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, वो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके बारे में डिटेल्स देगा. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि व्हाट इज द स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल या व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है, and spin quantum number is going to tell you about the spin, either it is going to be clockwise or anti-clockwise. ठीक है, so wait a second. ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, सो आप जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उसे n से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, जहाँ n आपके पास, n की वैल्यू कैन बी 1 2 3, इट कांट बी 0. ठीक है, या ये नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं हो सकती. ठीक है, इट इज़ neither going to be 0 nor the negative integers. ठीक है, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी you can say the positive, you can say the whole numbers. ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर्स, क्योंकि सॉरी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 होल नंबर होता है. ठीक है, सो यू कैन से दिस वे. ठीक है, उसके अलावा अगर हम फार्मूलाज की यहाँ बात करूँ मैं, अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने किसी में फाइंड करना है, सो यूज़ द फार्मूला 2n स्क्वायर. ठीक है, और आपको इस तरह पता चल जाएगा कि k शेल में, l शेल में, m शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो L से. ठीक है, L से आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो. अगर इसकी वैल्यूज़ मैं बता दूं, फॉर S P D F, दीज आर योर सबशेल्स. ठीक है, सो S के लिए L की वैल्यू होती है 0, फॉर P इट इज़ 1, D के लिए 2 होती है एंड F के लिए 3 होती है. ठीक है, टू रिमेंबर दीज. तो ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ गई. सो आपके पास जो L की वैल्यू होती है ना, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 लेस देन n. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, वी से L इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ठीक है, यानी L की और n की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती. अगर L की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है ना, तो L की वैल्यू इज नेवर गोइंग टू बी 2. ठीक है, इट इज आइदर गोइंग टू बी 1 या फिर मतलब 1 होगी, या 0 भी हो सकती है. ठीक है, वी कैन से, देखो L की वैल्यू S के लिए 0 आ रही है. ठीक है, सो n, और अगर मतलब इस तरह MCQ आ जाता है कभी कभी कि वो कहते हैं कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट. ठीक है, उसमें n की और l की सेम वैल्यू है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन ASAP. ठीक है, यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट इट. आगे आप m की और s की वैल्यूज देखो ही मत. ठीक है, इमीडिएटली एलिमिनेटेड, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि l और n की वैल्यूज सेम हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर. इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. s आपके पास होता है स्फेयर. ठीक है, p आपके पास होता है डम्बल, d आपके पास सॉसेज शेप होता है एंड f इज कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, इसी तरह इसमें इसकी ओरिएंटेशन, जहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, आप उसको m से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, आपके पास फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर s आपके पास m की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, p में आपके पास इसकी वैल्यू 3 होती है. यू गॉट px, py एंड pz, ये आपके पास ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, d में आपके पास इसकी वैल्यू 5 होती है एंड 7 होती है फॉर f. ये मैं अब आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. When we talk about the magnetic quantum number, it tells us कि अगर हम इसको, इस ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, so what is going to be the behavior. ठीक है, इसका क्या बिहेवियर होगा. अगर हम एक स्फेयर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ फार्मूला ही लगा लेते हैं ताकि मैं आपको फार्मूला और थ्योरी साथ साथ समझा सकूँ. वी से m इज इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस एल. फॉर एस, एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, वी नो एल की वैल्यू 0 है, हमने पीछे पढ़ी है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट m, इट इज गोइंग टू बी प्लस इंटू माइनस 0. सो इसका मतलब व्हेन यू पुट एन s ऑर्बिटल in a magnetic field, it is not going to deflect in any direction. ठीक है, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. ठीक है, when we talk about p, so p सबशेल आपके पास इस तरह का होता है. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, so m की वैल्यू is going to be
प्लस इंटू माइनस एल, ठीक है. सो प्लस इंटू माइनस वन हम इसे कर दें, सो वी गेट प्लस वन, ज़ीरो एंड माइनस वन. ये तीन वैल्यूज आपके पास आ रही हैं. दिस मीन्स द पी ऑर्बिटल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट इन थ्री, पी सबशेल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट इन थ्री डायरेक्शंस. ठीक है, आपके पास ये तीन डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट करेगा. पी एक्स होता है, यू गॉट पी वाई एंड पी जी. ठीक है, सो इस तरह ये आपके पास डिफ्लेक्शन इसकी पता चल रही है. सेम इज़ द केस विद डी. डी में आप अगर हम इसको करेंगे प्लस इंटू माइनस टू, सो हम करेंगे प्लस टू से माइनस टू तक, वी आर गोइंग टू गेट वैल्यू फाइव. ठीक है, एंड सेवन फॉर एफ. ठीक है, सेम केस है. नेक्स्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर. सो दिस इज इजी. स्पिन क्वांटम नंबर आपको बस ये बताता है कि आपके पास किस डायरेक्शन में स्पिन हो, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की डायरेक्शन बताता है. ठीक है, इफ इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव हाफ, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. नेगेटिव हाफ मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो वेट अ सेकंड, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं. सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वी गॉट सम रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में प्लेस करते हैं. ठीक है, सो वी गेट द ऑफ प्रिंसिपल, हुंस रूल है, एंड देन द पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. ऑफ पावर प्रिंसिपल एक्चुअली डिफाइंस द एनर्जी. ये आपको ये बता रहा होता है कि यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू. ठीक है, और इसमें आप एन प्लस एल रूल भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू कैन यूज़ एन प्लस एल रूल. आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यू नो द वैल्यू ऑफ एन, यू नो द वैल्यू ऑफ एल, यू आर गोना ऐड दैट. जिसकी वैल्यू कम आएगी ना, अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन कर रहे हो, सो द वन हैविंग द लेसर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज, यू आर गोइंग टू फिल दैट फर्स्ट. ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा. सो दिस इज द ऑफ पावर प्रिंसिपल. हुन रूल्स आपके पास डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन कर रहा होता है. ठीक है, यानी हम कहेंगे कि रिपल्शन, मतलब आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दैट आर गोइंग टू, ये इस तरह उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी. ठीक है, इस तरह करके स्पिन में वो स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट लाइक दैट. ठीक है, जिस तरह अगर मैं कहती हूँ टू पी एक्स, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट स्पिन. एंड अगर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की बात, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एक्चुअली डिफाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हुंस रूल डिफाइन द डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो आपको ये बताता है कि हाउ आर यू गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल. ठीक है, सो अगर हम बात करें, मैं इस तरह लिखती हूँ, टू पी एक्स वी गॉट टू पी वाई and 2pz. ठीक है, मैं एक शॉर्ट सी एग्जांपल से आपको बता देती हूँ. इफ वी डू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, यू कांट फिल बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन 2px. ठीक है, आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को 2px में फिल किया एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2py, फिर आप 2pz फिल करोगे अगर इफ यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड देन आप 2px पे इस तरह होगे. ठीक है, यू कांट जस्ट पुट द टू इलेक्ट्रॉन्स इन 2px एंड लीव 2py एंड 2pz एम्प्टी. ठीक है, सो दिस इज द हुंस रूल. नेक्स्ट इज, we are coming to the physics portion here. ठीक है, and in physics we are going to discuss the chapter work, power and energy. So in physics we define work as the product of force and displacement. ठीक है, हम कहते हैं it is the dot product of force and displacement. We say work done is equals to F dot D. ठीक है, that gives you FD cos theta. ठीक है, and इससे हमें ये पता चल जाता है work is your scalar quantity. ठीक है, सो आप कह सकते हो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. आप इसको यूँ लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो वर्क, तो एक ऑब्जेक्ट किस किस कंडीशन में उसका वर्क डन जीरो के इक्वल होगा, आइदर द फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो. फॉर्मूले से चीज़ें डिराइव करो. ठीक है, या आइदर फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, या कॉस थीटा में कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसकी वजह से आपके पास जीरो आंसर आ सकता है. ठीक है, दैट इज 90 और 270. कॉस 90 भी जीरो होता है, कॉस 270 इज ऑल्सो जीरो. सो अगर आपके पास कॉस की वैल्यूज 90, अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री बन रहा है, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. या आपके पास वर्क डन इटसेल्फ जीरो है, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जीरो वर्क डन. When we talk about work, we do have different units. We get kilowatt hour, that is equal to 3.6 megajoules. 10 raised to the power 6 होती है मेगा की वैल्यू. ठीक है, then we get the calories, that is equal to 4.18 joule. Urge है, that is 10 raised to the power minus 7 joule. And electron volt is also a unit of work. ठीक है, so that is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule. ठीक है, so next we come to the fields and we got conservative and non-conservative fields. अगर
if work done in a closed path is equal to 0, you get that is the conservative field. इसका मतलब आपके पास work done है that is independent of the path. Like we talk about the gravitational force, electrostatic force या magnetic force, ठीक है. So ये आपके पास conservative fields होती हैं. When we talk about friction, so अगर मैं कहूँ कि एक object ने अपना path यहाँ से start किया, it went here and then came back here, displacement आपके पास 0 हो गई. Is the work done by the frictional force going to be 0? No, definitely, ठीक है. Friction did its work. तो हम क्या कहेंगे, ऐसी फोर्स जिसमें आपके पास वर्क डन इन क्लोज पाथ वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ द आपके पास मोस्टली जितनी भी रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ना, दैट आर द नॉन कंजर्वेटिव, दैट आर कंसिडर्ड इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, टेंशन आ गई, इस तरह की सारी रिएक्शन फोर्सेस आ गई बाकी. सो दैट इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. नेक्स्ट इज़ पावर. तो अगर हम पावर को यहाँ डिफाइन करें, सो पावर इज़ एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है. मैं इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख लेती हूँ. इस तरह MCQs आते हैं, वी हैव टू यूज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस. मैं कहूँ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. अगर टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा, पर यूनिट टाइम. और अगर मैं इसको देखूँ, सो दिस इज इटसेल्फ अ फार्मूला, तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, फोर्स और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है. सो फोर्स एंड वेलोसिटी का आपके पास ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है. सो ये आपके पास फार्मूले आ गए. वर्क डन की जगह आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है. Next is efficiency. So efficiency percentage, that is output divided by input, and आप उसे 100% से क्या कर देंगे, multiply कर देंगे. And that's it for this. Was just a little review about the chapter before we go to the MCQs. So now jumping towards the MCQs. So yeah, starting with the first one, it is in human the total inside capacity of lung is about. So ये भी मैंने discussion में बता दिया था. It is in some books it's written as 6 liters, in some it is written as 5 liters. But if you get an option, you guys all know that अगर आपके पास exact amount नहीं दी हुई, so you have to choose something जो उससे सबसे ज़्यादा करीब तर आंसर हो, ठीक है. So if 6 या 5 whatever it is, in some books it's written 6, in some it's 5, ठीक है. So you are going to choose 5 here because ये सबसे ज़्यादा appropriate answer है. नेक्स्ट इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द लेरिंग्स इज कॉल्ड. तो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, उसके ऊपर आपके पास एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दैट एक्ट्स एज अ फ्लैप, ठीक है. ओपन हो रहा होता है, क्लोज हो रहा होता है, ठीक है. दैट इज द एपिग्लॉटिस. लेरिंग्स एक्चुअली इज द पैसेज जहाँ से जिसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस होता है, एंड वोकल कॉर्ड्स आपके पास वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द लेरिंग्स, ठीक है. आपके पास पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड इन. तो इंटरकोस्टल मसल्स आपके पास रिब्स के अंदर होते हैं, ठीक है. यू डू हैव पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, आपके पास एक्सटर्नल होते हैं एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर विद द डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर आर. सो आपके पास रिस्पायरेटरी सरफेस जिसका आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जिसका स्ट्रक्चर इज लेस देन 1 मिलीमीटर, दैट इज द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट. एल्वियोलाई का डायमीटर दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर आप कहें, सो ये इसका होता है, एंड ब्रोंक्यूल इट इज लेस देन 1 millimeter. For efficient gaseous exchange, this is also mentioned in the book, you need to have a डायमीटर ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है. सो वो आपके पास इन ह्यूमन बॉडी ये जो आपके पास कंडीशन है ना, ये आपके पास ब्रोंक्यूल्स में ही पूरी हो जाती है. और आपके पास जो एल्वियोलाई है दैट इज़ मोर थिनर देन द ब्रोंक्यूल्स. इसका मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंटली गैशियस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है. बट गैशियस एक्सचेंज डजंट अकर इन द ब्रोंक्यूल्स, कीप दैट इन माइंड. Diaphragm is a sheet of, so diaphragm is a sheet of skeletal muscles. Charlie is the right option. Diaphragm is actually a sheet of skeletal muscles and it separates the thoracic and the abdominal cavity, ठीक है. Next is the oxygen binding protein present in the skeletal muscles. We have discussed it. Oxygen binding protein है, ये स्टोर करेगी ऑक्सीजन को. आपके पास मोस्टली skeletal muscles and bone marrow के अंदर प्रेजेंट होती है, that is myoglobin. Delta is the right option for this. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायाफ्राम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. सेम गोज विद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? ठीक है. So अगर आप अपना सांस बंद रखो for some time, you feel that after some time there is an urge to breathe. वो किसकी वजह से होती है? That is not. Some people misunderstand that falling oxygen concentration. ऐसा नहीं होता. The urge to breathe is due to the rising carbon dioxide concentration. क्योंकि if अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड राइज होगी ब्लड में, it is going to show you a lot of symptoms. It is not healthy for you. It is not good for you. तभी तो आपके पास there is a special mechanism to
keep the carbon dioxide out of the body. ठीक है, you'll feel nauseous, fatigue होगी, dizziness होगा, headache हो सकता है, even you can go to coma. ठीक है, so your body doesn't need an increased concentration of carbon dioxide. It need to get rid of the carbon dioxide. In order to do that, you expire. ठीक है, so it's the rising carbon dioxide concentration that जिसकी वजह से you do have an urge to breathe. ठीक है, next is approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. तो आपके पास 70% of carbon dioxide lungs में transport हो रहा है as bicarbonate ions. ठीक है, alpha is the right option for that. बाकी हमें पता है 23% हो रहा है as carboxyhemoglobin and बाकी 7% हो रहा है as dissolved in plasma. Next is people who have migrated from plains to higher altitude area about 6 months back. अब एक बंदा 6 महीने पहले from plain area to higher altitude यानी mountainous region में गया. ठीक है, what is going to be the response of the body towards this change? ठीक है, so have more RBCs and their hemoglobin has lower binding affinity. ठीक है, जब आप higher altitudes पे जाते हैं, so your kidney do have a hormone that is known as erythropoietin. ठीक है, kidney secrete करती है that hormone, and the function of that is to increase the RBCs when you are in a higher altitude, ताकि your body can accommodate मतलब क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सको, क्योंकि there is a deficiency of oxygen, मतलब ऑक्सीजन concentration decrease करती है ना as you move upward. ठीक है, higher altitudes में. So alpha is the right option for that. ठीक है, are not physically fit to play games like football. Initially you might have some problems like breathing issues you may have. ठीक है, but मतलब 6 महीने हो गए. ठीक है, in the question it is given. Charlie option is altitude sickness. ठीक है, if you do travel from plains to higher altitude, you are going to suffer from altitude sickness. ठीक है, but 6 महीने बाद तक आपको altitude sickness नहीं रहेगी. ठीक है, you are going to feel symptoms like nausea, fatigue. ठीक है, but this is short term. ठीक है, ये नहीं होगा कि 6 महीने हो गए मतलब it's half a year. ठीक है, so इतना नहीं होगा कि 6 महीने बाद भी you are suffering from altitude sickness. So since question में given as 6 months back, so altitude sickness is not the right option for that. Have a usual RBC count, नहीं, RBC count will going to increase. ठीक है, so alpha is the right option for this. Next is the respiratory centers which control the inspiration and expiration that are located in the medulla है, beta is the right option. आपके पास इसमें expiratory center होता है that controls the inspiratory center होता है that controls the inspiration, and expiratory होता है that controls the expiration. Next is in lungs, the air is separated from the venous blood through. ठीक है, अब इसमें तो आपसे ये बात कह रहा है कि एयर और venous blood के दरमियान में, but what are the things that are separating them? So we are talking about alveoli here, and आपके पास क्या होते हैं lungs के अंदर? You do have capillaries. ठीक है, अब अगर हम इनकी walls की बात करें, so alveoli are made up of squamous epithelium. So here is the squamous epithelium and capillary is only one cell thick. हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, capillaries आपके पास बहुत मतलब thin होती हैं. It is only one cell thick and that one cell is your endothelium. So this is the endothelium of the blood vessel of the capillary, and the simple squamous epithelium ये आपके पास होता है of the alveoli. So beta is going to be the right option. Squamous epithelium plus the endothelium of the blood vessel. ठीक है, so air आपके पास separate होती है. This is the, यहाँ आपके पास air होगी alveoli में from the venous blood through squamous epithelium and endothelium of blood vessels. Next is lungs are enclosed in, तो आपके पास pleural membranes होती हैं. ठीक है, उसमें lungs को enclose किया हुआ होता है उन्होंने. ठीक है, you have the inner membrane that is known as visceral pleuron इसका singular है. ठीक है, and outer membrane that is known as parietal pleuron. So next is the passage of the respiratory system have mucus secreting cells. तो mucus secreting cells are the goblet cells. ठीक है, इनका function ये होता है कि mucus secrete कर रहे होते हैं. ठीक है, and they synthesize and secrete mucus. So आपके पास respiratory system में mucus secreting cells होते हैं. क्यों? क्योंकि you are taking the air from the outside environment. ठीक है, and the air definitely is going to have some dust particles, some pathogens, some particulate matter that your body doesn't want. ठीक है, so in order to get rid of that you are going to have mucus, and here आपके पास nose में होते हैं specifically. नीचे जब when you go down तो आपके पास जो respiratory system है उसमें आपके पास mucus present होता है, and cilia is also present. So mucus is going to trap all that particulate matter that your body doesn't need. डिफेंस मैकेनिज्म का भी पार्ट है ना, आपके पास आपके इम्यून सिस्टम में भी आ जाती है mucous membranes of digestive and respiratory system.
ठीक है. So the mucus is going to trap all the substance, harmful substance for your body, and cilia is going to propel it either towards the digestive system or you are going to spit it. यानी क्या हो जाएगा towards the larynx and pharynx and mouth. ठीक है. So these are the two pathways in order to eliminate that from the body. ठीक है. So goblet cells are the mucus producing cells. During breathing from during breathing air from pharynx कहाँ चला जाता है, enter करता है. From pharynx the air goes to the larynx, but larynx isn't the option here. So larynx के बाद कहाँ जाता है, trachea. So trachea is going to be the right option, alpha. ठीक है. अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज एंड थिंक यार फेरेंक्स के बाद तो लैरिंक्स में जाता है एंड इट इजंट एन ऑप्शन हियर. तो आप देख लें आफ्टर लैरिंक्स इट गोज टू ट्रेकिया. सो ट्रेकिया इज द आंसर फॉर दैट. ठीक है. यू डोंट नीड टू पैनिक फॉर इट. Which of the following statements is correct about the respiratory pigment? तो आपके पास एक respiratory pigment, आपके पास हम दो respiratory pigments पढ़े, one is hemoglobin and the other is myoglobin. ठीक है. And the question is which one statement is correct about it. ठीक है. So myoglobin and hemoglobin has higher affinity for nitrogen. तो nitrogen की तो है नहीं ना, these are the oxygen carrying. Oxygen इसकी affinity हमने discuss करनी है. Cyanide and hemoglobin have low affinity for oxygen. No, its myoglobin has more affinity for oxygen as compared to hemoglobin. We have discussed it before. So Charlie is going to be the right option. Delta देखें, albumin, globulin and globin proteins are present in the respiratory pigments नहीं है ये. ठीक है. These are the proteins. ठीक है, but not the respiratory pigments. So Charlie is the right option. Site of gaseous exchange in human आपके पास alveoli है. Delta is the right option. ठीक है. बाकी these are just the passages. ठीक है, जहाँ से air जा रही है in order to reach the main part. ठीक है, in order to reach the alveoli for the gaseous exchange. ठीक है. Next is the gaseous exchange in animals take place through. So it takes place through simple diffusion process. ठीक है. Charlie is going to be the right option. ठीक है. From high concentration to low concentration just movement हो रही है. ठीक है. So Charlie is the right option for that. Expiratory center in medulla is, तो आपके पास expiratory center is your dorsal portion. ठीक है. Expiratory center in medulla is dorsal. Alpha is the right option. ठीक है. जो expiratory center है that is located in the dorsal यानी back part of the brainstem. ठीक है. So alpha is right option for that. Goblet cells आपके पास क्या होते हैं? These are the mucus secreting cells. These are unicellular exocrine gland. ठीक है. So unicellular made up of one cell. Exocrine it means it is ducted. ठीक है. Ductless नहीं होता. There is going to be a duct जहाँ से mucus secrete होगा. ठीक है. So alpha is the right option for this. Orbital having the same energy are called, जिन orbitals की same energy होती है you call them degenerate orbitals. ठीक है. अगर हम बात करते हैं p की, so we say px है, आपके पास py है and pz है, इनकी same energy है. ठीक है. अगर आप इस तरह करके इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, पहले पी वाई में कर दो या पहले पी एक्स में कर दो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. ठीक है. सिंस दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी है तो पहले कहीं भी फिल हो सकता है. ठीक है. सो डीजेनरेट ऑर्बिटल इज द ऑप्शन फॉर दैट, बीटा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल. अब हम 2p ऑर्बिटल की बात करें, सो क्वांटम नंबर वैल्यूज इसकी क्या होंगी? n की वैल्यू आपके पास 2 है. ठीक है. n इज इक्वल्स टू 2, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. p अगर हम l की वैल्यू की बात करें तो मैंने बताया s इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. d इज इक्वल्स टू 2. सो p की वैल्यू 1. सो आप देख लें ये कौन सा ऑप्शन है. n इज इक्वल्स टू 2, l ये l की वैल्यू है ना, फॉर s p d f. ठीक है. सो l की वैल्यू आपके पास 1 है. सो alpha इज गोइंग टू बी द right option for this. Next is quantum number which is not derived from Schrodinger wave equation. That is your spin quantum number. I told you it was derived in 1925 by Goldsmith. ठीक है. So delta is the right option for that. The nodal plane in an orbital is the plane where electron density, आपके पास nodal plane is the plane जहाँ पे आपके पास electron density minimum होती है, 0 होती है. ठीक है. Beta is the right option. Probability of finding electron is going to be 0. ठीक है. वहाँ पे आपको कोई electron नहीं मिलेगा. Next is the number of degenerate orbital in subshell having the sausage shape. अब देखो उसने इस तरह पूछ लिया. So sausage shape होता कि subshell क्या है? First you need to understand that. तो sausage shape आपके पास किसका होता है? That is going to be the d orbital. d orbital आपके पास sausage shape होता है. So उसमें आपके पास degenerate orbitals उसके कितने होते हैं? 5 होते हैं. So Charlie is the right option for that. ठीक है. नेक्स्ट इज द p ऑर्बिटल हैज डैश एनर्जी देन s ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास सेम है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. अगर n की वैल्यू सेम है, अगर n की वैल्यू आपके पास क्या है?
सेम है। तो अगर मैं ले लूँ 2s और 2p तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, s की एनर्जी कम होती है। देन कम्स p, देन d एंड देन f। दिस इज़ द ऑर्डर इन विच द एनर्जी इज़ डिफाइंड। ठीक है, सो p जो 2p है ना उसकी एनर्जी आपके पास दैट इज़ गोइंग टू बी हायर, सो बीटा इज़ राइट ऑप्शन देन 2s। ठीक है, नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ copper and chromium, which of the following is true? ठीक है, so when we do the electronic configuration we come up with this exception. ठीक है, here हम इसको यूं करके लिखते हैं एंड जिंक आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम 3d ऑर्बिटल फर्स्ट इस तरह 3d 4s2 कर दें एंड 3d 1, देन हेयर 3d 2 और यहाँ पे 4s2 होता है, 3d 3 एंड 4s2। क्रोमियम में अगर हम बात करते हैं सो हेयर इज़ 3d 4 नहीं होता, 3d 5 4s1 होता है। एंड इसी तरह यहाँ पे आप इसको इस तरह चलते रहें, 3d 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3d 6 हो जाएगा, 4s2 चल रहा है। ठीक है, 3d 7 3d 8 एंड यहाँ पे हम 3d 9 नहीं लिखेंगे, 3d 10 हो जाता है और यहाँ 4s1। वट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आपके पास एक सब शेल है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होगा व्हेन इट इज़ आइदर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड। ठीक है, पार्शली फिल होगा या फुली फिल होगा तो वो उस टाइम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंस 3d 5 में वो ज़्यादा स्टेबल है तो ये 3d 4 होने की जगह 3d 5 हो जाता है एंड यहाँ 4s में आपके पास क्या हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सो 3d ऑर्बिटल आपके पास इन केस ऑफ क्रोमियम इट इज़ हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड आप कह दो, एंड कॉपर में इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो अल्फा और बीटा तो हो नहीं सकते क्योंकि वो कॉपर एंड क्रोमियम दोनों की बात करें, तो एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा। चार्ली में एक इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल, तो 4s में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इन बोथ द केसेस, सो चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द हुंस रूल। तो हुंस रूल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने ये करना है कि अगर आपके पास 2px है, 2py और 2pz है तो आपने ये नहीं कर देना कि 2px को ही 2 इलेक्ट्रॉन या तीनों दे दो एंड 2py 2pz 0 0 रह जाएं। ठीक है, सो दिस इज द वायलेशन ऑफ हुंस रूल। ये आप देखने कहाँ हो रही है, पहली में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट, 2pz में एक है, 2py में एक है एंड 2px में भी एक है। दूसरे में भी आप देखें सही हुआ हुआ है, बट डेल्टा ऑप्शन में आप देखें 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 0, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2px में एक होता एंड 2py में एक होता, 2pz में 0 रहते क्योंकि आपके पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, इट इज द वायलेशन ऑफ हुंस रूल हियर। द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन द ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल। तो डी सबशेल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं? डी सबशेल में ना आपके पास वैसे 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, एंड आपके पास अगर हम डी की बात करें, so you do have, when we're talking about d subshell we have 5 orbitals, yes. ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल की 4 लूप्स होती हैं। ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट वी गेट 20, बट यू डू हैव एन ऑर्बिटल दैट इज डी जी स्क्वायर, इसमें आपके पास 2 लोब्स होती हैं सिर्फ। ठीक है, सिंस इसमें 2 लोब्स होती हैं 4 नहीं होती, तो आप 20 से -2 कर लो एंड यू विल गेट 18, सो 18 इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू गेट दैट। देखो यहाँ इस तरह वरना देख लो, आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ डी सबशेल। ठीक है, एंड ऑल द ऑर्बिटल्स टू हैव 4 लोब्स एक्सेप्ट फॉर द डीजी स्केयर। डीजी स्केयर इसमें आपके पास 2 लोब्स होती हैं, सो आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 20, लेकिन आप 2 माइनस कर दो क्योंकि 2 लोब्स कम हो रही हैं, सो यू विल गेट 18 एज एन आंसर। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। Next is an electron in an atom is completely described by the 4 quantum numbers. ठीक है, 4 quantum numbers that is the principal, azimuthal, spin and magnetic. ठीक है, अगर आप ये सब आपको पता हो so you know exactly मतलब आप completely electron को describe कर सकते हो by knowing all these 4 quantum numbers. When 3d orbital is complete, next entering electron goes to, so आप इसको दो तरीके से find कर सकते हो, either you can use the n+l rule. ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी समझा दूंगी n+l रूल की, और फिर मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट n+l रूल तो हम 3d ले रहे हैं एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंस 4p इज द राइट ऑप्शन तो मैं 4p ले लेती हूँ। ठीक है, सो 3d में आपके पास n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू आपके पास 4 है। l की वैल्यू आपके पास हम यहाँ लिख लेते हैं, फॉर s इट इज़ 0, p के लिए आपके पास होती है 1, d के लिए होती है 2 एंड f के लिए होती है 3। ठीक है, सो डी के लिए आपके पास इट इज़ 2 एंड फॉर पी इट इज़ 1, सो यू गेट 5 इन बोथ द केसेस। अब आपने कहाँ पहले फिल करना है, सिंस n+l वैल्यू दोनों की सेम आ रही है तो आप वहाँ पहले फिल करोगे जिसकी n वैल्यू कम होगी, सो इसका मतलब 3d पहले फिल होगा एंड देन कम्स द 4p।
पहले तो ये चीज़ आ गई। अगर आप 4s करके देखोगे तो आपके पास n+l वैल्यू इसकी 4 आएगी, ठीक है। 4s में 4 + 0 तो 4 आ रही है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो चार्ली इस तरह राइट ऑप्शन, या तो आप n+l रूल की तरह इस तरह करो, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, पहले 1s लिखो, फिर 2s 2p, इस तरह एरो ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा फर्स्ट 1s फिल हो रहा है, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, लाइक दिस। वो आपके पास ऑर्डर बता रहे हैं इन विच यू कैन फिल, सो आइदर व्हाटएवर सूट्स फॉर यू कैन गो फॉर दैट। Then a neutron was discovered by So Chadwick discovered and named neutron. ठीक है, so delta is the right option. Next is the number of electron present in. So अब उसने आपको एक इलेक्ट्रॉन की 4 set of quantum number, 3 set of quantum number उसने बता दिए, ठीक है। And then the question is कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। n की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ आप 2 लिख लें। l की वैल्यू इज़ 1, सो इसका मतलब इट इज़ p, हमने पीछे लिखा फॉर s इट इज़ 0, फॉर p इट इज़ 1, एंड m की वैल्यू 3 है, सो इसका मतलब आपके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, आपके पास 2px है, 2py है एंड 2pz है। वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो आप इस तरह कर लें एंड यू गेट 6 इलेक्ट्रॉन, या तो आप इस तरह कर लें, ठीक है। सो यू विल गेट द 6 एज एन आंसर, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम कोरिस्पॉन्ड टू द स्टेट। आपके पास ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज अ स्टेट जहाँ आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है, एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ मतलब एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का आपके पास इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। जब आप एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राउंड स्टेट, सो इट इज़ अ स्टेट विद द मिनिमम एनर्जी बट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राउंड स्टेट को फिल करता है, ठीक है, देन इट कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट। So the quantum number plus half and negative half for the electron spin, they represent the rotation of electron in clockwise and anti-clockwise respectively. ठीक है, positive half represent the clockwise rotation and negative half represent the anti-clockwise. Which of the following is the correct order? ठीक है, so ये अब हम physics वाली side पे आ गए हैं. So we discussed the values before. ठीक है, तो हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें, सो दैट इज़ 1 किलोवाट आवर दैट इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स, देन 1 जाउल आ जाता है, एंड देन 1 अर्ज आ जाता है, 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -7 जाउल। सो करेक्ट ऑर्डर आपके पास फर्स्ट किलोवाट आवर, आप इसको यूँ लिखें, मेगा यानी 10 रेज़ पावर 6 जाउल्स, देन कम्स जाउल एंड देन कम 10 रेज़ टू द पावर -7 जाउल, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो अगर हम वर्क का फार्मूला लिखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इट डजंट डिपेंड अपॉन, तो आप फार्मूला लिख दिया करो, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम वर्क का फार्मूला लिखें, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मैं कहूँगी FD cos थीटा, इसका मतलब एंगल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, बट टाइम तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टाइम पे आपके पास वर्क डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इजी वे, आप फार्मूला लिखो, आपको समझ आ जाएगा किस डिपेंड करेगा किस पे नहीं, ठीक है। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी कर दूं दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इस तरह एक बॉडी है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये आपके पास सेंटर है, ठीक है। एंड वर्क डन, तो वर्क डन आपके पास इस तरह हो रहा है, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम कहते हैं FD cos थीटा, थीटा आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, यानी वर्क डन आपके पास क्या आ गया, 90 हो या 270 हो थीटा, तो मैंने बताया था वर्क डन 0 हो जाता है, cos 90 इज इक्वल्स टू 0, सो आपके पास वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। सो फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसने ये नहीं पूछा जनरली वर्क डन कितना है, उसने पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज गोइंग टू बी 0, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब हम अगर मोमेंटम का फार्मूला लिखें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा, वी से मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एक बॉडी है वो लाइट है, उसका भी वही मोमेंटम है जो आपके पास हैवी बॉडी का है, ठीक है। एंड इसका मतलब एक जो आपके पास लाइट बॉडी है उसका मास कम है, ठीक है। अगर हम लाइट में लिखें तो मास कम है एंड हैवी वाली का मास ज़्यादा है, ठीक है। दोनों का मोमेंटम इक्वल करने के लिए वेलोसिटी से कंपनसेशन होगी, ठीक है। इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ताकि आपके पास वही मोमेंटम रहे ऑन बोथ साइड्स, एंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो एक बॉडी
लाइट है और एक हैवी है, यानी उसके मास वेरी करें, बट मोमेंटम बोथ का सेम है। इसका मतलब वेरिएशन कहाँ आ रही है, मतलब आप कंपनसेट कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम द वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि यू आर लेफ्ट विद वेलोसिटी ओनली, ठीक है। सो आपके पास जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो विच हैज़ द ग्रेटर kinetic energy, and kinetic energy is directly proportional to velocity. Kinetic energy is equals to half mv square, ठीक है। सो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसी की kinetic energy ज़्यादा होगी। सो आपके पास हम ये कह रहे हैं कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सो दैट इज़ द लाइटर बॉडी, अल्फा इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज टू bodies of kinetic energy 2m and 1m sorry of masses 2m and 1m की kinetic energy का रेशियो गिवन है, and you have to find the ratio of the momentum, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। सो या हियर वी गो। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। हम कहते हैं मोमेंटम डिवाइड बाय मोमेंटम 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। मैं लिखूँगी इट्स 2, m की वैल्यू क्या है फॉर द फर्स्ट बॉडी, इट इज़ 2m, एंड काइनेटिक एनर्जी अभी रहने देते हैं, एंड 2 और m की वैल्यू इसकी 1m है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपके पास आ रहा है 8:1, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, आपने यहाँ इसका रेशियो लिख दिया। आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इसको ले आओ, ठीक है, लाइक दिस, एंड कैंसिल करते जाओ जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। इस 2 को 2 से, बल्कि कैंसिल मत करो भी, 8 2 16, 16 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 लिख लो, एंड यहाँ पे आप कैंसिल कर दो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर रूट 16 बाई 1, और स्क्वायर रूट 16 दैट इज़ 4, एंड 1 का भी स्क्वायर रूट 1 होता है। सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 4:1, ठीक है। सो इस तरह आप इसे कर लो, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। This is the shortcut formula actually, that is momentum is equals to 2 square root 2m kinetic energy, ठीक है। If the momentum is increased by 2 times, kinetic energy किस तरह increase होगी, ठीक है। सो इसके लिए भी हम यही शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे। वेट अ सेकेंड, हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूँ मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मोमेंटम का स्क्वायर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने रिलेशन डिराइव कर दिया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, आपके पास मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 4 टाइम्स, ठीक है। So 4 times Charlie is the right option for this. Next is the velocity of a body is doubled and mass is halved. Kinetic energy कितनी हो जाएगी? So हम यहाँ पे kinetic energy का formula use करेंगे, that is kinetic energy is equals to 1/2 mv square. m की वैल्यू पुट करते हैं, mass is half, तो m/2 हो गई mass, ठीक है। and velocity आपके पास क्या होगी, double, so it is 2v whole square because it's v square, right? So हम यहाँ करते हैं 1/2 m/2 हो गया, एंड इसका होल स्क्वायर ले लें, यू आर गोइंग टू गेट 4v स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, सो 2 से इसको काट दें। अब देखें, उसने आपसे ये पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा, सो आपने काइनेटिक एनर्जी के हाफ को नहीं इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। इसको मत काटना वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट 1/2 mv स्क्वायर एज इट इज़ रखो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 है जो हमने काटा 4 को, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसको यूँ करके लिखें, रुको मैं ऊपर वाला इरेज करती हूँ ताकि मैं इसको लिख सकूँ। हम इसको यूँ लिखेंगे, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्राइम, यानी जो काइनेटिक एनर्जी बाद में हमने निकाली है दैट इज़ गोइंग टू बी 2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अगर आप ये वाला 2 कैंसिल कर दोगे ना, तो जो मसला होगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं बनेगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ना दैट इज़ 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला 2 आपने कैंसिल नहीं करना, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर फॉर दैट। सो आपके पास ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप ये वाला 2 कैंसिल कर दोगे तो एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगा, और अगर आप इसको वैसे सॉल्व करोगे तो आप सोचोगे अच्छा ये तो अनचेंज ही रह रही है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, ऐसे मत करना। सो यू हैव टू जस्ट बी अ लिटिल विजिलेंट अबाउट दैट। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी, तो फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव वर्क भी कर सकती है, जीरो भी वर्क हो सकता है बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और नेगेटिव भी हो सकता है। सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी थीटा आपके पास बन रहा है 90 डिग्री, तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन का फॉर्मूला है ना FD cos थीटा, तो अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, आसान तरीका बताती हूँ। हम थीटा से चल रहे हैं, ठीक है, हम सारी बात थीटा से कर रहे हैं। अगर आपके पास थीटा हो रहा है 90 डिग्री,
यानी हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो आपके पास वर्क डन 0 होगा। अगर आपके पास थीटा आ रहा है 0 डिग्री, यानी आपके पास बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम थीटा कह रहे हैं आपके पास 180 डिग्री, यानी आपके पास बोथ बॉडीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे करके मूवमेंट हो रही है, मैं ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos 180 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो आप सब ये थीटा से ही फाइंड कर लो। इसका मतलब आपके पास वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ये 3 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। A stone is thrown up from a surface of the earth when it reaches the maximum height, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो जब वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है तो एक पॉइंट आता है, वो रुक जाता है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो डाउनवर्ड ट्रैवल करना शुरू करता है, ठीक है। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें एट द मैक्सिमम हाइट हम बात करें, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। जब वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आपके पास वो स्टोन क्या है, आपने इस तरह फेंका, एट दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू स्टॉप, फिर नीचे आएगा, ठीक है। सो एट द मैक्सिमम पॉइंट, दिस मैक्सिमम पॉइंट, सिंस वेलोसिटी इज 0, सो योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 0, बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। किलोवाट आवर आपके पास किसका यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर का आपके पास यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, एंड मोमेंटम का आपके पास होता है, इट इज न्यूटन सेकेंड, यस, और टॉर्क का आपके पास होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। मास ऑफ 20 किलोग्राम इज लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द पावर। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा, पावर में हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन आप कहते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू mg, ये फार्मूला है। तो आप फोर्स की जगह mg यूज़ कर सकते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह आप हाइट यूज़ करेंगे, सो वी गेट दिस फार्मूला mgh बाय t एज इट इज़, ठीक है। सो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ करना है एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर थ्रू दिस, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैस आपके पास आ गया 20 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, 9.8 यूज़ करें, 10 यूज़ करें, ठीक है। एंड हाइट आपके पास 2 मीटर आ गई, एंड आप इसे डिवाइड कर दें 4.9, तो 4.9 से डिवीजन मुश्किल हो जाएगी, हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो जो नियरेस्ट आंसर होगा हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 400 डिवाइडेड बाय 5 एंड 8 5s आर 40, सो वी गेट 80 हियर, ठीक है। आप यहाँ पे 9.5 यूज़ कर 9.8 यूज़ करें, या यहाँ पे आप 4.9 यूज़ करें, आप किसी भी तरह सॉल्व कर लें। सॉल्व आप उस तरह करें जो आपके लिए कन्वीनियंट है। उसके बाद आप ये देख लो कि जो नियरेस्ट आंसर है वो कौन सा आ रहा है। अगर मैं उस तरह सॉल्व करती हो सकता है मेरा 79 पॉइंट समथिंग आ जाता, 78 पॉइंट समथिंग आ जाता, या 81 पॉइंट समथिंग भी आ जाए, आई नो द नियरेस्ट आंसर इज़ 80, ठीक है। सो आई एम गोना गो फॉर दैट। सो कैलकुलेशन उस तरह करो जो आपको अपने लिए ईजी पड़े, ठीक है, एंड नियरेस्ट आंसर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज, सो यू डू हैव टू वेज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गोना गो फॉर द शॉर्टकट, मैंने आपको बताया दैट इज द मोमेंटम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस, ठीक है। सो मोमेंटम आपके पास 2 न्यूटन सेकेंड है, इट इज एस, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट 2 m की वैल्यू आपके पास 2 किलोग्राम है, 2 लिख लेती हूँ सिर्फ मैं, और काइनेटिक एनर्जी यू डोंट नो, यू हैव टू फाइंड इट। सो हम कह देते हैं 2 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 काइनेटिक एनर्जी। अब इस 4 को आप अलग लिख लो, एंड स्क्वायर रूट 4 इज 2, तो 2 आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, आपने स्क्वायर रूट ले लिया 4 का, एंड काइनेटिक एनर्जी स्टिल इन द स्क्वायर रूट। सो व्हाट यू आर गोना डू, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है, इस 2 को इधर ले आए, ठीक है, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। सो यू आर गोइंग टू गेट 1, ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी, एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1, ठीक है। सो 1 जूल इज द आंसर फॉर दिस। या तो ये तरीका, दिस इज द शॉर्टकट, और यू कैन गो विद दिस मेथड। आप मास और मोमेंटम आपके पास गिवन है, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जब आपको पता चल जाएगी देन यू कैन सिंपली यूज द फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² एंड गो फॉर दैट, व्हाटएवर इज ओके फॉर यू, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सो जाउल भी है, अर्ज भी है, किलोवाट आवर भी है, इसकी वैल्यूज भी हमने पढ़ ली हैं, सो ऑल ऑफ दीज डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। An automobile is moving forward with uniform velocity due to the force exerted by its engine. If the force is doubled with the velocity remaining constant, what happens to the total power? अगर हम पावर की बात करें, so हमने पावर के इतने फार्मूले डराइव किए, एंड उसमें से एक फार्मूला ये भी था दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये हमने डराइव किया।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो आपके पास अगर इफ़ द फोर्स इज़ डबल्ड आप कर दें 2F, तो वेलोसिटी सेम रखें, तो आपके पास पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर इज़ गोइंग टू बी 2P, ठीक है। सो आपके पास ये भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी पावर 60 वाट इज़ द पावर, ठीक है, एंड वर्क डन या आप कह दो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर आपके पास 60 गिवन है, एनर्जी आपने फाइंड करनी है पर यूनिट टाइम। अब टाइम आप 2 लिखोगे तो आपका 120 आंसर आ जाएगा। आपने चार्ली के लिए यू थॉट ओके यू डिड इट राइट, डोंट डू दैट, ठीक है। 2 मिनट्स गिवन है, जस्ट फोकस ऑन द यूनिट्स कि वो क्वेश्चन में आपको यूनिट क्या दे रहा है। इट इज़ 2 मिनट्स, ठीक है, 2 सेकंड्स नहीं है, ऐसे यूनिट फॉर द टाइम इज सेकंड्स। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज यू आर गोइंग टू कन्वर्ट, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 120 सेकंड्स हो जाएंगे। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, सो 2 मिनट आर गोइंग टू बी 120 सेकंड्स, ठीक है। आपने इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से 60 इंटू 120 एंड 12 6 आर इट इज़ 72, ठीक है, एंड ये 2 ज़ीरो लगा दिया आपने। अब 7200 आपके पास ऑप्शन कहाँ है, सो अल्फ़ा आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है। यू आर गोइंग टू डू व्हाट 7.200 किलो जाउल्स, ठीक है। आपने इसको डेसिमल में इस तरह ले आया, आपने किलो जाउल्स कह दिया। सो हियर अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस, एंड वी आर डन विद द MCQs. Now I'm coming towards the questions. If you guys have any questions, do write it in the chat box and inshallah I'll be answering them. Ariba, can you check if there are any questions on the chat box? Okay, sure, I'll check. Okay, so someone is asking I'll check. कि alveoli 1 millimeter diameter का होता है. Okay, so someone is asking. I'll check. अच्छा, Okay, echo हो रहा so है? alveoli. Yes, Sarim, continue. Yeah, so when we talk about alveoli, so its measurement in the book is given as 0.1 micrometer. Lekin if you do the conversion in the millimeters, so wait a minute, I can do that. I can check if it is 1 millimeter. So I'm getting different values. So in the book it is written as alveoli 0.1 micrometer, ठीक है, या myometer. So it is not 1 millimeter as far as I know. It is 0.1 micrometer, ठीक है. Alveoli का diameter is 0.1 micrometer. Even if I convert it into the millimeters, I'm not getting 1 millimeter as an answer. Okay, so there's a little confusion about this thing कि पंजाब की बुक के अंदर और KPK और हर किसी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है. अब द थिंग इज कि यू गो विद द वैल्यू दैट इज बीन प्रोवाइडेड इन योर प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज के फॉर एग्जाम्पल इफ डाउ इज कंडक्टिंग द MDCAT का एग्जाम, सो दे विल मेक श्योर कि वो वही वैल्यू को एक्सेप्ट करे जो कि सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है. So you guys need to be super careful about these things. Okay, for example, I've seen a lot of times kids studying for Sindh ka MDCAT, but they prefer Punjab ki, books because they are more conceptual and थोड़ी सी अच्छी हैं. But then again, the problem is कि उसकी वजह से values के अंदर वो आ जाती है, एक वो आ जाती है, discrepancy आ जाती है, and वो अक्सर औकात जो है ना बच्चे अपने marks lose करते हैं. So especially about the values, be careful. Go with the book, go with the values that have been provided in your provincial textbook board. Yep. अच्छा, so I think अरीबा और कोई questions हैं chat box में? मेरे पास यहाँ पे YouTube नहीं चल रहा है अभी.
नो भाभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है अब। ठीक है। सो आई थिंक बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी भेज सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं वंस दिस स्ट्रीम एंड्स। तो स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली वॉच दिस थिंग एंड गेज कि अगर उनको ये डेमो क्लास हेल्पफुल लगी है, सो दे कैन डेफिनेटली enroll in this cohort. Apart from that, मैं बस वापस से 2 मिनट लूँगा सारे बच्चों के कि this cohort is especially for the students who find it difficult to have the rhythm to practice a lot of questions. ठीक है। So मैंने आज तहरीम को रिक्वेस्ट की थी कि अपना लेक्चर जो है वो छोटा रखना है एंड जो मेन पर्पस होगा हमारे पूरे कोहॉर्ट के अंदर वो ये होगा कि वी हैव टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस a lot of questions, right? तो हर रोज़ हम लोग हर 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 रोज़ हम लोग 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स पे हम लोग MCQs का होमवर्क देंगे सुबह और शाम को दोनों को, एंड उनकी डिस्कशन होगी रात को लाइव। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होंगे वहाँ पे मेंटर्स हमारे एक्टिव होंगे वेयर ऑल ऑफ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस जो कि बच्चे इनरोल्ड होंगे उस कोहॉर्ट के अंदर। एंड द आइडिया इज़ कि आपको हर किस्म के MCQ के लिए प्रिपेयर करवा दिया जाए कि कोई ऐसा MCQ आपको ना आए जो आपको चैलेंजिंग लगे। सो then again I'm saying ke watch this thing again and see if it's helpful or not. The structure of the class is going to be pretty much similar कि in first few like थोड़े section के अंदर हम लोग 20-25 minutes हमारा mentor जो होगा they're gonna like quickly go through the topic। ठीक है। मैं वही वापस से मैंने शुरू में भी यही बात कही कि we will not be going into super like बिल्कुल minute detail के अंदर, बस ओवरव्यू देना है ताकि आपकी जो मेमोरी है वो मतलब फ्रेश हो जाए यार। अच्छा यार ये मेन चीज़ें थी। ठीक है। बाकी वो छोटे छोटे डॉट्स होंगे वो आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हो या खुद भी बुक पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हमारा जो भी 200-300 क्वेश्चंस का होमवर्क होगा वो हमारे टीचर जल्दी से उसको एक्सप्लेन करेंगे ओवर द लाइव क्लास। एंड फिर उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी हुई है तो वो उस क्वेश्चन को सेव कर लें, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एंड वो ग्रुप पे भेजें और हमारा मेंटर हमेशा अवेलेबल होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हु आर enrolled in the cohort can obviously ask questions other than the ones that have been given in the homework, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे भले प्रीमेड से ना करें कोई और रिसोर्स से भी MCQs करें, बट द मेन आइडिया इज कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आई थिंक फॉरम की लिंक जो है वो अरीबा ने स्टोरी के ऊपर भी डाल दिया है, तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमारे वो फॉर्म की लिंक है। वरना आई आस्क अरीबा टू put the form link in the description of this stream, तो वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि लिमिटेड स्पॉट्स हैं, वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोहॉर्ट, सो वी विल नॉट बी टेकिंग मोर देन 100 स्टूडेंट्स इन दिस कोहॉर्ट। ठीक है। एंड yeah, that's about it. I hope you found this class super helpful and I'm hoping कि आप सारे बच्चों को जो भी cohort लेना चाहते हैं I'll be there in the tomorrow's class as well। तो कल भी यही होगा, but obviously ज़्यादा questions होंगे homework के अंदर and probably around 200 questions होंगे practice के लिए, and अलग से भी हम लोग उन students को cohort के अंदर होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। सो लगभग 300-400 क्वेश्चंस यू विल बी प्रैक्टिसिंग विद अस एंड उसके अलावा भी हमारे मेंटर्स आपको होमवर्क दे रहे होंगे रेगुलरली। So that's about it. I think Ariba, you can end the stream now, and if any student has any query तो वो हमारे socials पे message कर सकता है। ठीक है। It was nice having you people and awesome work, Terry. Thank you so much.